نہیں ہے کہیں خیرا شریف گڈو کے پاپا اب کس مرتبہ ہم جائب خیرا شریف اور اگر غریب ہیں ٹکٹ کا پیسہ نہ لا سکے تو کہتے ہیں لیو جب ہمارا ہی نمبر آوت ہے تب تم میرے پاس پیسہ نہ ہوت ہے اور جب تمہیں کہوں جائے ہوت ہے تو طرح طرح کے پیسے گڈی پر گڈی آیا کرتی ہے۔ میری بہن میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں اور میرے بھائی یہاں پر تشریف فرمائے، بس 5 منٹ میرے پاس اور ٹائم، مجھے آدھے گھنٹے کا نمبر ملا تھا، بس 5 منٹ اور بچا ہوا آدھا گھنٹہ پور ہونے میں، 5 منٹ اور برداشت کریں۔ سنیں، آج میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، سوال یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں مسجد ہے نا؟ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ کبھی عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں، ایک ٹائم پر پاؤ گے، کب؟ جب جیل گگری بھرنا ہوئی ہے تب ہوتا ہے نا آپ کے گاؤں میں؟ جیل گگری کے نام پر مسجد سے پانی لانے والوں، میں ایک مسئلہ بتا کر کے رخصت ہوتا ہوں، سنیں، مسجد کا پانی باہر لا کر کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی خیال کریں۔ اٹھاؤ بہار شریعت، علامہ امجد علی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں مسجد کا پانی اپنے گھروں میں لا کر کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وقف شدہ ہے، اور وقف شدہ کو جو مال وقف کر دیا جائے دوسرے کاموں میں وہ تبدیل نہیں کی جا سکتی ہے، یہ مسجد کے لیے وقف کیا گیا ہے، آپ اپنے گھر پہ لے کر کے آتی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ جب ہماری بہنیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی ہے تو بتا مسلمان ان بہنوں کو کب اجازت ہوگا؟ خیرہ شریف جائیں، دیوا شریف جائیں، اجمیر شریف جائیں، راضی کے وہاں جائیں، کہیں نہیں جانے کی اجازت ہے۔ آج جو ہم نعرہ لگاتے ہیں پی ٹی ایس بریلوی ہے، سینہ ٹھوکتے ہیں، یہ سینہ ہمارا بالکل کھوکھلا ہے، ہمارے سینوں میں اعلی حضرت کی محبت نہیں ہے، اعلی حضرت کو ہم نے جانا ہے پر جو پیغام دیا ہے اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر، یعنی عورتوں کو مزاروں پر جانا منع ہے، منع ہے، منع ہے، یہ اعلی حضرت نے فرمایا۔ آج میری بہنوں کا ہجوم دیکھو، سب سے زیادہ درگاہوں پر عورتوں کو پاؤ گے، مزاروں پر سب سے زیادہ عورتوں کو پاؤ گے، یہ کس کی کمی ہے؟ کمی ہماری اور آپ کی کمی ہے، کمی ہم نے دے رکھی ہے، کیونکہ آپ ان عورتوں کے حاکم ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ جب تم حاکم بنا کر کے بھیجے گئے ہو تو تم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو اپنے اندر میں چلاؤ جس طریقے سے ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے۔ مگر آج کل کا نوجوان اگر چلانے پر تل آئے تب یہ گڈو کی امی کہتی ہے ایسا چھوارا جیسا منہ بنا کر کے کہتی ایسا کرو، تم اپنے ماں باپ کو لے کر کے رہو، ہمارا تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اے میری بہن، آج جو تم نے اسلام کا جنازہ نکال رہے ہو، شرم آنی چاہیے جو پردے کے لیے تم بنا کر کے بھیجی گئی تھی۔ اے مسلمان کی بیٹیوں، تمہارا وقار کیا تھا؟ تمہیں زندہ دفنایا جا رہا تھا، تمہیں زندہ گاڑا جا رہا تھا، تمہیں زندہ مارا جا رہا تھا، تمہیں زندہ چتے کے ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا، تمہارا وقار کچھ نہیں تھا۔ اگر تم کہتی ہو کہ ہم قید خانے کے اندر ہیں، اے میری بہن، تمہارا وقار کچھ نہیں تھا، ہمیں تم کو تو زندہ جلایا جاتا تھا، پر یہ آمینہ کے لال کی برکت ہے۔ جب 12 تاریخ کو عبداللہ کے گھر میں وہ چاند سا چہرہ آمینہ کے گود سے پیدا ہوا ہے تو جانا تو ہو، اعلان کر دیا تھا اے دنیا والوں، اب عورتیں گاڑی نہیں جائیں گے، اب بچیوں کو زندہ دفنایا نہیں جائے گا، کیونکہ ان بچیوں کا محافظ آمینہ کا لال آ گیا ہے، ان بچیوں کا محافظ عبداللہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ اے میری بہن، اپنے شوہروں کے کہنے پر چلو، اپنے بیٹوں کو صحیح راستہ بتاؤ، مگر آج حال ایسا ہے ایک ہاتھ کے موبائل ہاتھ میں دے دو۔ آج یہ نوجوان 6 مہینہ کی طلب پورا لگا کر کے ایک موبائل خریدتا ہے، جائے گا کمانے کے لیے، 1 سال ممبئی میں گزارے گا، 6 مہینے کی رقم اکٹھا کرتے 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 وہ پو لے گا، اب تو پوکو بھی چل گیا ہے نا۔
तरह तरह के कंपनी, मगर चल रहा है ये इंसान ही के लिए है, मगर जिस तरीके से जायज है उस तरीके से चला है। आज ये नौजवान ऐसा ऐसा मोबाइल लेगा, फिर उसी मोबाइल में तरह तरह की बातें, तरह तरह के खुराफात। नमाज का टाइम हो रहा है, नजरें हमारी स्क्रीन पर है, तरह तरह के खुराफात। वहां से घर पे आएंगे, अपनी बीबी को बिठा करके वो स्टोरी सुनाएंगे, वो गाने दिखाएंगे, वो ड्रामेबाजी दिखाएंगे। ए मेरे भाई, अगर तेरी बीबी है और तेरी यानी तेरी बेटी है तो अपनी और बेटी और बीबी को कह दे, ए मेरी बहन बेटी, अगर टाइम ना पास होता हो, चल अजान हो रही है, चल मुसल्ला भी जाते हैं, फिर नमाज अदा करते हैं। नमाज पढ़ने के बाद में कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह कुरान की तिलावतों की बरकतों से मुसीबतें दूर फरमा देगा। मगर आज हमें कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, आज हमें नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। अब तो ऐसा ऐसा मियाँ फैशन, कान में मुर्की पहन करके चलते। हम तो कहते कान ही कुछ दाते हो, नच्छिद्दे भी बन जाओ, नाक में आप बाली पहन करके चलो, कान में भी बाली पहन करके चलो। नबी ने फरमाया था औरतों का यानी जेवर जो होगा मर्दों में आ जाएगा, मर्दों का जेवर जो है औरतों में आ जाएगा। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, आज वही हो रहा है। ए मेरे भाई, नबी ने फरमाया था कि यानी आप औरतों की नकल ना करो, आप औरतों की मुशाबिहत ना करो, क्योंकि जो जेवर औरतों के लिए बनाए गए हैं औरतें इस्तेमाल करें, जो जेवर मर्दों के लिए बनाए गए हैं वो मर्दों इस्तेमाल करें। आप कहोगे मौलाना मर्दों के लिए कौन सा जेवर बनाया गया है, तो सुन ले, एक जेवर है जिसे अंगूठी कहा करते हैं, ये मर्द के लिए एक अंगूठी जायज है, वो भी 4.5 मासे के अंदर हो, चांदी की हो। हजरात, एक अंगूठी सिर्फ मर्दों के लिए जायज है, मगर आज तो मियाँ कलाई में कड़ा है, यानी गले में चैन है और कान में मोरकी है, तरह तरह के हमारा फैशन है। ए मुसलमान, नबी ने फरमाया था जो दुनिया में रह करके हाथ में कड़ा पहनेगा, गले में जंजीर पहनेगा, कान में मोरकी पहनेगा, बरोज़े महशर में जब ये दुनिया से जाएगा, कब्र के अंदर जाएगा, तो यही इसके यानी जो जेवर है वो अजदहे की शक्ल बन जाएंगे। अजदहा बन करके आपको डसेंगे, आपको काटेंगे। मुसलमान, कब्र के अंदर जब ये सांप हमको काटेंगे, हमको डसेंगे, तो बता हम किसको चीखो पुकार करके अपनी आवाज को सुनाएंगे। अभी वक्त है, संभल जाओ, अभी टाइम है, संभल जाओ, वो न जानते हो मुसलमानों, मरने के बाद तेरा बाप नहीं काम आता, मरने के बाद तेरा बेटा का काम नहीं आता, तेरी माँ काम नहीं आती। अगर काम आने वाली चीज है तो दुनियादार नहीं बल्कि आमिना का लाल काम आएगा, अब्दुल्ला का बेटा काम आएगा, मगर कब वफादार रसूल के लिए मुस्तफा काम आएंगे, गद्दार रसूल के लिए मुस्तफा काम नहीं आएंगे। अपने दिलों में नबी की मोहब्बत बसाओ, अपने दिलों में कुरान की यानी मोहब्बतों को बसाओ, अपने दिलों में माँ बाप के अहमियत को समझने की कोशिश करो। आज हम तो माँ बाप को तरह तरह के हकारत की नजरों से देखते हैं। आज अगर मियाँ अपने माँ बाप को यानी अच्छाई करने लगे तो ये कहती है ऐसा करो गुड्डू के पापा, तुम अम्मा का अपने लेके रहो, हम चल रहे हैं अपने मैका। ए मेरी बहन, आज तुम यानी कहती हो इस तरीके से गुड्डू के पापा अपनी माँ को लेकर के रहो। सुनो, आपसे मैं ये कहता हूँ, एक माँ छोड़ करके आती हो तो दूसरी माँ तुम्हें ससुराल में मिला करती है। तुम्हारी माँ ने पैदा किया है तो इधर भी इसकी माँ ने पैदा किया है, तुम इसकी खैर ख्वाही कर लो। नबी इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा जन्नत के चौखट को चूमना चाहता है, अपने माँ बाप के पेशानी को चूम ले, समझ लो वो बंदा जन्नत की चौखट को चूम लिया है। ए मुसलमान, मगर आज ऐसा तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर आज ऐसा मुआशरा नहीं है। अब तो तरह तरह के पीर हजरत,
लोटा वाले, सोटा वाले, खटिया वाले, हुड़का वाले, तरह तरह के पीर हैं। नमाज से मतलब नहीं, हम बड़े पीर हैं। रोजे से मतलब नहीं, हम बड़े पीर हैं। आला हजरत के नारे से मतलब नहीं, हम बड़े पीर हैं। मैं ये तो कहता हूँ, जिसके दिलों में बुग़्ज़े आला हजरत भरा हो, वो कुछ भी हो सकता है, रसूलुल्लाह का वफादार नहीं हो सकता है। तुम उनको अपने दरों से भगा दो, दुत्कार दो। अगर वो आला हजरत वाला हो तो एक चटाई पर रहने वाला इंसान हो तो अपने सीने से लगा लो। आला हजरत ने जो पैगाम दिया है, अपने बाप का नहीं बल्कि रसूल पाक का पैगाम दिया है। आपने आला हजरत को समझा किया है यार। ये नानपारा की सरजमीन पर राजा शहादत अली के जमाने में जब आला हजरत नानपारा में आए तो राजा शहादत अली ने कहा था, ए मेरे वजीर, एक यानी पर्चे को ले लो, मैंने सुना आला हजरत शायर हैं, जाओ मेरे नाम से एक शेर लिखवा लाओ और कह देना मुझे बादशाह ना भेजा है। इतना कहना था, वजीर लेकर के गया। आला हजरत बैठे हुए थे, कहने लगा, वजीर आला हजरत मेरे बादशाह ने मुझे भेजा है, आप उनके नाम से कुछ शेर लिख दो। आला हजरत ने कलम को उठाया और लिखने लगे, करूं मदहे अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा नान है। हमें नान कहते हैं रोटी के टुकड़े को, रोटी को, और पारा कहते हैं टुकड़े को। आला हजरत फरमाते हैं, जाओ अपने बादशाह से कह दो, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं बल्कि जानते हो आला हजरत दुनिया के नाम से नहीं बल्कि आला हजरत अगर शेर व शायरी करेगा तो आमिना के लाल के नाम पे करेगा। इसीलिए बताया चला आला हजरत का एक शेर या तो कुरान तर्जमा होता है या तो किसी हदीस का मफहूम हुआ करता है। मेरे भाई, आला हजरत को जानो और पहचानो। आला हजरत ने क्या पैगाम दिया, उस पे अमल करने की कोशिश करो और अपने बच्चों को अच्छा नाम दो। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि जो बच्चा पैदा हो और पैदाइशी मर जाए तो उसका नाम नहीं देना चाहिए, यानी कि उसका नाम नहीं रखना चाहिए। ये जिहालत है, ये जिहालत पर मबनी है। आप उठाओ बहार शरीयत, उठाओ फतावा फैजुर रसूल, उठाओ फतावा फकीह मिल्लत, उठाओ फतावा अफ्रीका आला हजरत की, तो पता ये चलेगा कि मेरे इमाम फरमाते हैं जो पैदाइशी बच्चे मर जाते हैं उसका भी नाम रखो, इसलिए कि जब मैदान महशर कायम होगा, नबी फरमाते हैं जो पैदा हो तो मर गया, जब तुम उसका नाम रखोगे मैदान महशर में उन बच्चों को उनके नाम से बुलाया जाएगा, और जब नाम से बुलाया जाएगा तो नाम के बल पर घसीटते हुए वो बच्चे आएंगे। रब कहेगा बच्चों जाओ तुम जन्नत में, बच्चा कुछ दूर जाएगा, रुक जाएगा। रब कहेगा क्यों रुक गए? तब बच्चा कहेगा परवरदिगार, जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया था मैं तन्हा नहीं, अपने साथ में अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर के जाना चाहता है। रब का करम होगा, हमें और आपको जन्नत का मुजदा सुना दिया जाएगा। पता ये चला जो पैदाइशी बच्चे खत्म हो जाए तो भी उनका नाम दे दिया जाए, उनका नाम रख दिया जाए। जो ख्याल करते हैं नहीं रखना चाहिए, जिहालत है। ये वड़ुआ ढुड़ुआ बुधवा नाम न रखो, बुध के दिन पैदा हुआ तो बुधई, मंगल के दिन पैदा हुआ तो मंगली, और जंगल में पैदा हुआ तो जंगली नाम रखते हो। मुसलमानों खबरदार खबरदार, अपने बेटों का नाम अच्छा रखो। रब फरमाता है जिस बेटे का नाम मोहम्मद से शुरू होगा, कितना भी गुनहगार वो बंदा हो, रब कहता है मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि उस मोहम्मद नाम के बेटे को जहन्नम में डालो, बल्कि मोहम्मद की बरकत से उसको जन्नत में आला से आला मकाम अता कर दूंगा।